واہ خسا واہ، رنداوا کو تو آپ نے مکھن سے بال کی طرح نکال باہر پھینکا۔ رندھاوا کی کیا اوقات ہے ملک صاحب، اس کا سی ایم بھی میرے سامنے کچھ نہیں بیچتا۔ صوبے کا ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ تو آپ کا بھائی ہے۔ ڈیفیکٹو ہونا اور صوبے کا سی ایم ہونا ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ وہ آپ کوئی دوسری ڈیل کی بات کر رہے تھے؟ یہ جب سے سڑک بننا شروع ہوئی، سڑک کے ساتھ ساتھ والی شہر کی سرکاری زمینیں لاکھوں کروڑوں تک پہنچ گئی، اور پھر آپ نے ہمیشہ ڈیفیکٹو تو نہیں رہنا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو سی ایم بنا دیا جائے۔ ہاں اس بار تو نہیں، اگلی باری کو جگاڑ جیسا ہے۔ اگلی باری کس نے دیکھی ہے خان صاحب؟ رنداوا گروپ کو تو آپ نے پہلے ہی سی ایم کے خلاف کر دیا، اور آپ کا اپنا گروپ بھی ماشاءاللہ کافی اسٹرانگ ہے۔ وہ ویسے بھی یہ سی ایم 2-4 ووٹوں پہ ٹکا ہوا، 2-4 ووٹوں کو ادھر سے ادھر لانے میں کتنا وقت لگتا۔ تو بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ روڈ کے ساتھ ساتھ والی ساری زمینیں انڈسٹریل اسٹیٹ ہوگی، میں اور آپ پارٹنر۔ گھر ڈھیر اگامات گئی ہے۔ صاحب یہ 2 بیگ ہے، یہ ڈالر والا آپ کی فائل کی قیمت، اور لوکل کرنسی والا آپ کے سی ایم بننے کی مٹھائی ہے، وہ بھی ایڈوانس، اور باقی کی ساری اماؤنٹ آپ کے کہنے کے مطابق آف شور اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرا دی گئی۔ آداب۔ یہ شیرو شور کیوں مچا رہا ہے؟ کیا اس کو کھانا نہیں دیا؟ نہیں دیے سر۔ کیا کرتے رہتے ہو پورا دن؟ خان صاحب کو پتا چلا تو بہت خفا ہوں گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اس کو کھانا دو۔ جی سر۔ اس بندے کو تلاش کرنا ہے۔ یہ کون ہے؟ ظہور حاکم خان کے قریبی حلقوں میں سے۔ جو انفارمیشن یہ دے رہا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ قریبی آدمی ہے، اور جیسی انفارمیشن یہ دے رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ حاکم خان کی بربادی ہونے والی ہے۔ اب سے بڑا دشمن کون پیدا ہو گیا حاکم خان کا؟ کوئی تو ہے میاں صاحب، پر کون؟ اگر ہے تو ان تک خاموش کیوں ہے؟ انفارمیشن کیوں نہیں دی؟ ہمیں انفارمیشن تو یہ دیتا رہا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکے۔ تانیہ کو اریسٹ کرتے وقت بھی 1 منٹ، کیا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تانیہ کی انفارمیشن دینے کے بعد وہ خود پکڑا گیا ہو؟ کیونکہ رنداوا کا ہٹانا اور حاکم خان کا وزیر بننا، یہ معلومات تو اب تک پہنچی نہیں۔ اگر تو یہ پکڑا گیا ہے نا تو حاکم خان نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بارے میں پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم حاکم خان کی کسی کمزوری کو ہاتھ میں نہیں لیں گے
तब तक तानिया की बेल भी नहीं होगी। कुछ लो और दो, अगर हमने उससे कोई एहसान लिया तो वो हमें बंदर की तरह नचाएगा। मैं चलता हूँ खान जी। कहाँ? अपराधी जमानत का केस है, अबूरी जमानत अगर कैंसिल हो गई ना तो जेल जाना पड़ेगा, वकील से मिलना है। ठीक है, लेकिन तब तक आप अपने बंदों से कहें कि वो इस बंदे को ढूंढे, मैं भी देखता हूं। जरूर। अरे वाह, आज ये इतना कुछ। लगता है कोई रिश्ता देखने आ रहा है। इतनी फिक्र है ना आपको अपनी शादी की। घर में जवान बेटा कवारा बैठा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो इसीलिए पूछ रहा हूं ना। और ये तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि तुम्हारे दिल में एक बड़ा सा तूफान छुपा हुआ है जिसे तुम रोक रहे हो। अरे व्हाट अ सरप्राइज। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मिशाल, आज इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है ना? शायद हुसैन ने आपको कुछ बताया नहीं। क्या? वो दरअसल मैं अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूँ अंकल। शिफ्ट तो रात को ही हो जाना था, मैंने सोचा सुबह आपसे मिल लूँगी, अलविदाई नाश्ता साथ कर लेंगे। अच्छा, तो यही तो मैं पूछ रहा था कि आज सुबह ये इतना खास नाश्ता। हुसैन ने वाकई बहुत तकल्लुफ़ कर लिया। अरे नहीं, वो बिल्कुल भी तकल्लुफ़ नहीं है। मैंने सोचा तुम्हें रुखसत कर रहे हैं तो पूरे जश्न के साथ रुखसत करेंगे। ओह, तो ये मिशाल की रुखसती का जश्न है। आप दोनों ये बिल्कुल मत सोचें कि आप दोनों की मुझसे जान छूट गई। इस तरह का नाश्ता करने तो मैं कभी भी टपक सकती हूँ। हम बिल्कुल भी ऐसा सोचने वाले नहीं हैं। जब मन चाहे 100 बार आओ, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि हकीकत तो ये है कि हम चाहते ही नहीं थे कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो यकीनन ठीक ही किया होगा बेटा। जी। मेरा ख्याल है नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ, चलो भी बच्चों, स्टार्ट करो। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। अब वक्त आ गया है कि आपको सीएम बना दिया जाए। ऐश्वर्य तो नहीं। हुसैन, अरे भाई हुसैन बेटा, कहाँ रह गए?
तानिया का क्या हाल है? उससे मेरी बात ही करा दे। वहाँ करवा दूंगा मैं, वो भी मसरूफ होगी। वो उधर मसरूफ है, तू यहाँ मसरूफ है। मुझे अपने बाप की कब्र पर ही ले जा। वहाँ मैं ले जाऊंगा, थोड़ा सा खा ले। प्लीज। नहीं, मैं जब तक नहीं खाऊंगी जब तक तू लेके नहीं जाएगा। वहाँ कहा ना, मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा, प्लीज थोड़ा सा खा ले। पक्का वादा? पक्का वादा। ये लीजिए, शाबाश। ओके अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अब वो हुसैन से तो तुम्हारी अक्सर मुलाकात ऑफिस में होती रहेगी, लेकिन अपने अंकल को मत भूलना। जब जी चाहे मिलने आ जाना। आपको भुलाया जा ही नहीं सकता, और मैं ज़रूर आपसे मिलने आती रहा करूँ। अब बस दुआओं में याद रखिएगा। जीती रहो मेरी बेटी, सलामत रहो। खुदा हाफिज। होती है ऑफिस में मुलाकात। खुदा हाफिज। यही जिंदगी है बेटा, और ये जिंदगी अपने अंदर बहुत पावर रखती है। जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ तो मुझे यूं लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारी माँ की मौत के गम ने आज तक मेरे दिल की धड़कनों को जारी और सारी रखा हुआ है। और वो जस्ट वैसे भी शिफ्ट हुई है यहाँ से, सिर्फ तुम्हारे बाबा का बारात का खर्चा बढ़ा है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। हाँ, देखते हैं हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरी होती है या फॉलो अप वाली न्यूज़ स्टोरी। और भाई ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे रिपोर्ट कैसे करते। आपने ऑफिस से किस टाइम वापस आना है? वैसे तो वीकेंड है, आज छुट्टी है मेरी, लेकिन क्यों? खैर, कुछ चीज़ें दिखानी थी आपको, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए थी। तो नो प्रॉब्लम, जिस वक्त दिल चाहे आ जाना, बैठकर डिस्कस कर लेंगे। आ जाओ तुम भी अंदर। अब Finally, welcome to your own place. फूल कुछ ज़्यादा नहीं? ज्यादा? मुझे तो कम लग रहे हैं। कम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच अजमत, आप हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देते रहते हैं। मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी सरप्राइज देना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि तुम्हारी खुशी और हैरत कम ना हो। ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलें? हाँ
चलते हैं, मेरी भी मीटिंग है, तुम फ्रेश हो जाओ। लाला जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुने, मुझे ज़रा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। सेक्रेटरीट में कोई ज़हूर नामी आदमी होता है? शेख साहब कैसे मिजाज है? जी एक्चुअली मुझे ये जानना है कि सीएम ऑफिस में कोई ज़हूर नामी आदमी होता है? मलिक साहब एक बंदा मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम है ज़हूर, हाकिम खान का ख़ास आदमी है। ताहिर मुझे मुस्तफ़ा ने तुम्हारा नंबर दिया है यार, वो एक बंदे के बारे में मैं पता लगवाना चाह रहा हूँ। हाँ ज़हूर नाम का बंदा है। हाँ ज़हूर। हेलो, हाँ पता चला ज़हूर का? हाँ ठीक है, शाबाश, पता करके बताओ। नवीद खान बात कर रहा हूँ यार। वो पिछले दिनों आपने मुझे एक ज़हूर नामी शख्स का बताया था ना, वो कहाँ काम करता है, किधर रहता है, ज़रा ये इन्फॉर्मेशन मुझे भेजेंगे? थैंक यू। नहीं पता चला, चलो कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उधर जाके टिक जाओ, तुम वहां से यहां आ गए। बॉस मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन वो हस्बत माना ही नहीं। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे चैनल का मालिक वही हो। उड़ने दो उन्हें हवाओं में। अच्छा, और ऊपर उड़े, बल्कि वो लड़की जितना ऊंचा जाएगी ना, ऊपर से जब वो नीचे गिरेगी मजा आएगा उसकी चीखें सुनने का। लेकिन बॉस अभी क्या करना है? अभी जो भी करना है मुझे ही करना है, तुम फिक्र ना करो। तुम जाओ घर पे आराम करो, खर्चे वगैरह की टेंशन ना लेना। ओके बॉस। हाँ सलाम सर। क्या साहब, आ जाओ बैठो। क्या कह रहा था ड्रामा? कुछ नहीं, यही कह रहा था कि अजमत ने इसे फारिग कर दिया। तो यानी हमारा शक गलत निकला, इसने वो इन्फॉर्मेशन नहीं लीक की। इसकी इन्फॉर्मेशन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? ज़हूर। ज़हूर? हाँ। हाँ शिराज, क्या बात? बॉस वो मैं नवीद के घर गया था, वो तो कह रहा है कि अभी घर पर ही रहो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है इसका क्या मतलब है? क्या बॉस? इसका मतलब ये है कि तुम एक लंगड़े घोड़े हो जिसके ऊपर कोई दाव नहीं लगा रहा। ऐसी बात नहीं है बॉस, मैं अभी भी गेम में हूँ। क्या इन्नो यार, मुझे तो लगता है कि मैंने ऐसे ही बात कर दी आबिद की हाकिम साहब से, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। खैर वो तो वापस हो ही जाएगी। बॉस ऐसा ना कहें, आपने ज़ुबान दी हुई है। अरे यार, जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? बॉस एक टिप है मेरे पास, और ये तानिया से भी बड़ी है। बताओ क्या है? अब ये तो मैं आबिद की रिहाई पर ही बताऊंगा, लेकिन ये टिप गेम चेंजर होगी। ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा? तुझे पता है ना, अगर मैं नवीद को तानिया वाली बात बता दूं तो। बॉस चैनल में तो मैं आपकी भी नहीं रहा, और रखा मुझे नवीद ने भी नहीं। तो आपकी मर्जी है, आप बताना चाहते हैं बता दें, लेकिन ये टिप रह जाएगी और नवीद मुहतात हो जाएगा, फिर आप उसके सोर्स तक कभी नहीं पहुंच सकते। अच्छा चल ठीक है, करवाता हूँ आबिद को रिहा, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो रिहा करवा सकता है वो दोबारा अंदर भी करवा सकता है। ठीक है बॉस। ज़हूर के नंबर से एड्रेस निकलवाया था मैंने, बंदा भी भेज दिया था। तो फिर क्या हुआ? फिर की होना है, अब वहाँ नहीं रहता, कई साल पहले रहता था, कहीं चला गया कहीं।
तो कोई एड्रेस, कोई अता पता वगैरह मिला? अभी तो नहीं लगा कोई अता पता हाथ, लेकिन लग जाएगा। बस इतना पता लगा कि एक बच्चा था उसका। हाँ, तो कोई तस्वीर, कोई डिटेल, कुछ तो होगा यार। कुछ भी नहीं, लेकिन परेशान ना हो, मैंने बंदा पीछे लगा दिया है। ये साहब देखो, हमारे पास अभी वक्त नहीं है। रंधावा का जाना और हाकिम का आना, अजीब खिचड़ी मची हुई है। हमारे हाथ में इस वक्त उसका आना बहुत ज़रूरी है। परेशान ना हो खान जी, कोशिश जारी है, बेहतर ही होगा हमारे हक में। और हाँ, मैंने वो वज़ीर जेल खाना जात से बात कर ली है, सेल भी चेंज करवा दिया और मुलाकात भी हो जाएगी आपकी कल। यार बहुत शुक्रिया मियाँ। हाँ जी, ना शर्मिंदा किया करें, भाभी है हमारी, खैर होएगी। अम्मी फिर वही बात, यार आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मिशाल, तुम्हारे अब्बा का घर है ये। जो भी है, मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी। अब प्लीज़ आप सब छोड़ के यहाँ मेरे पास आ जाए। तुम्हारी बहन क्या कहेगी? कुछ भी नहीं कहेगी वो अपने घर में अपने शौहर के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। और फिर मेरा हर वक्त ध्यान वही लगा रहता है कि आपकी देखभाल कोई सही से कर भी रहा है या नहीं। बेशक मैं यहाँ काम पे होती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान आपकी तरफ ही होता है। और फिर अब तो मैं शिफ्ट भी हो गई हूँ, आ जाए ना प्लीज़। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, आ जाती हूँ मैं। हुसैन कैसा है? सईद भाई कैसी? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हुसैन उनके मेरे पास ही बैठे ये बात करने। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आंटी की याद नहीं आती तुम्हें? ठीक, कैसी बातें कर रही हैं, हर वक्त याद आती है आपकी। तो फिर फ़ोन क्यों नहीं करते? ये मिशाल के कामों से फुर्सत मिले तो आपको कॉल करूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है। कब आ रही हैं फिर आप? मैं जल्दी आ जाऊंगी बेटा। बस आंटी जल्दी से आ जाएं, आपके हाथ का खाना खाए हुए बड़ी देर हो गई है। हाँ हाँ क्यों नहीं। चले, ख्याल रखें आप अपना, ये मिशाल से बात करें। जी अम्मी, तो फिर मैं आपको गाड़ी भिजवा देती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, भिजवा देना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम क्या ये मेरी अम्मी को शिकायतें लगा रहे थे? बस ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा नया घर देखने कब आओगे? जब तुम बुलाओगे आ जाएंगे। जब मैं बुलाऊंगी? मतलब खुद से नहीं आओगे तुम? कितने मीन इंसान हो ना तुम। अच्छा बाबा, आ जाऊंगा, 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ। 1-2 दिन क्यों, आज ही चलो ना, दोनों साथ में चलते हैं घर। नहीं आज नहीं, आज अब्बू के कुछ काम करने हैं, बल्कि मैं भी घर ही निकल रहा था। चलो ठीक है, तो मैं निकलता हूँ, होती है मुलाकात। खुदा हाफिज़। जरा ये ऑडियो क्लिप सुने। जी मलिक साहब, आज ही मैंने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। शाम तक आपकी फाइल साइन हो जाएगी। आप तशरीफ ले आए ना शाम को, खास आपके लिए हिरन का गोश्त बनवाएंगे। देखो बेटा, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी थ्योरी क्या है? वो थ्योरी तो कोई नहीं है, बस मफरूज़े हैं। मफरूज़े? बोलो, कुछ तो पता लगे, क्या मफरूज़े हैं बेटा? तानिया की गिरफ्तारी का कनेक्शन शिराज और अजमत से होते हुए ना हाकिम खान से जुड़ता है। और रंधावा के लिए भी जो हांका लगाया गया था ना, ये ऐसे नहीं लगाया गया था। हाकिम खान का केमिकल टाइकून की मीटिंग में जाना,
عظمت کا 1-on-1 انٹرویو میں سے وہ سوالات نکال دینا، اور پھر حاکم خان کا یہ کہنا کہ آج آفس سنبھال لیا ہے، شام تک فائل سائن ہو جائے گی، یہ سب اسی پزل کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا بیٹا کہ یہ ملک ہے کون، کیا یہ وہی ملک رزاق ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے بیٹا کہ ایک معمولی سی فیکٹری کے لیے اتنا بڑا کام کیا گیا، دیکھو نا، ایک چھوٹی سی کیمیکل فیکٹری کے لیے اتنا بڑا رسک میری سمجھ سے تو یہ باہر ہے بیٹا۔ ابو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فیکٹری چھوٹی ہو لیکن اس کے پیچھے کام بڑا ہو۔ لیکن بیٹا یہ سب بھی تو مفروضے ہی ہیں نا، ہم کچھ بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ کہیں کہیں ان میں لنک ہے بھی اور کہیں نہیں بھی۔ ہم یہ شیراز کہاں ہے بیٹا؟ اسے تو آفس سے نکال دیا تھا۔ اوہ چلو بھائی، تمہارا پہلا مفروضہ تو یہیں ختم ہو گیا۔ اگر ان لوگوں نے شیراز کو فیور دے کر رکھا ہوتا تو وہ اسے نکالتے کیوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی۔ ایسا کرو بیٹا، تم یہ ملک رزاق والے مہمے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر بیٹا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سرا تمہارے ہاتھ ضرور لگ جائے گا۔ اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بھائی آج پہلا دن تھا، کہاں کچن میں جاتی کھانا شانا بناتی، تو میں نے یہ سارا اہتمام کر دیا۔ ویسے پتہ ہے ایسے ڈنرز کی نا انسان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے ڈنر کی آپ کو عادت پڑ جائے۔ عظمت، آپ میرے اور حسین کے ریلیشن شپ کو جانتے ہیں نا؟ پتا، اور یہ بھی پتا ہے کہ ریلیشن شپ کے لیے کمپیٹیبلٹی اور ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو نہیں لگتا کہ تمہارے فیم اور کرنٹ سٹیٹس سے حسین جیلس ہوتا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت مجھے صرف اور صرف اپنے کیریئر پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، تو کرو نا اپنے کیریئر پہ فوکس، کس نے روکا ہے؟ لیکن زندگی گزارنے کے لیے ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ Are you proposing me? کسی اور طرح پروپوز کرنا ہے تو مجھے وہ بتا دو، میں ویسے کر دیتا ہوں۔ دیکھیں مجھے کچھ وقت چاہیے، میں جن حالات سے نکل کے یہاں تک پہنچی ہوں، کوئی بھی فیصلہ میں جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتی۔ I hope you'll understand. I do. Take your time. جب جیسے فیصلہ تمہارا۔ I'm always there for you. Thanks. You're always welcome. کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ پلیز۔ کیا ہو گیا برو؟ میں چپ کیوں بیٹھا ہے؟ نہیں سن رہا ہوں، تو بول۔ جیل نے کافی بدل دیا تمہیں۔ کچھ مت پوچھ یار، جہنم ہے جہنم۔ میں تو سوچ رہا ہوں اس میڈیا کے بزنس سے نکل جاؤں۔ ابے چل کر یار، ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے، اس پہ فیلڈ تھوڑے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور تجھے میں نے کہا تھا نا کہ یہ بگیو شگیو آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہم اس کھیل کے اصل کھلاڑی ہیں۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جیل سے نکلا ہوں، مقدمہ سر پہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور سوچ جب نوید خان کو پتا چلے، یار کر لیں گے اس کا بھی کوئی حال، ایزی ہو جا۔ دیکھ میں نے اس پہ بہت سوچا ہے، یہاں پروڈیوسر ہی کھیلتے رہیں گے ساری زندگی، آگے کچھ نہیں ہے۔
ईमानदारी से नौकरी करते हैं तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से होगी, और अगर नवीद खान और अजमत भगियों जैसों के चक्कर में पड़ते हैं तो अलग मारे जाते हैं। तो उसका हाल क्या है? दाल चावल बेचे, वो तो बेचने से रहे। एक हल है मेरे पास। वो क्या? यहाँ से निकलने का वक्त है। निकलने का वक्त है? क्या मतलब? इमिग्रेशन ब्रो। देख, यहाँ तो कुछ बदलने नहीं वाला। मीडिया इंडस्ट्री वैसे ही डाउन चल रही है। हम कनाडा असाइलम अप्लाई कर देते हैं। मेरा केस जैसे ही ख़त्म होता है ना, ये कह के कि सहाफ़ी हैं निशाना बनाए जा रहे हैं, हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा रही है, हमारा केस स्ट्रांग है। लेकिन उसके लिए जो पैसे चाहिए उसका क्या करना है? वो जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अबे खाक जुगाड़ करेंगे। नवीद खान तो मुंह नहीं लगा रहा, नौकरी भी चली गई। लगता है अजमत के तलवे चाटने पड़ेंगे अब। क्या मतलब? मतलब ये है कि सब बदल गया है ब्रो, सारी गेम चेंज हो गई है। अब क्या हुआ है? नवीद खान की बीवी अरेस्ट हो गई है और उसकी टिप मैंने दी है। नौकरी भी चली गई है, नवीद खान ने शो छोड़ दिया है, और ये जो तू जेल से बाहर बैठा हुआ है ना, ये उसी का नतीजा है। क्या? हाँ जी। तानिया, तुम्हारा सेल तो चेंज हो गया ना? मैंने कुछ कपड़े और सामान भिजवाया था, वो तुम्हें मिल गया? क्या बात है, इतना खामोश क्यों? तुम बाप बनने वाले हो। क्या? कब? नवीद प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। मेरा यहाँ रहना हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। तानिया, मैं तुम्हें यहां से बहुत जल्द निकलवा दूंगा, बहुत जल्द। मतलब अब हम बिल्कुल सड़क पे हैं। सिर्फ एक चीज बची है अब हमारे पास। वो क्या? ज़हूर। अब ये ज़हूर कौन है ब्रो? नवीद खान ने मुझे एक नंबर दिया था ट्रेस करने के लिए, वो किसी ज़हूर के नाम पे था। तो उसका क्या करना है? मुझे लगता है ये वो बंदा जो नवीद को अंदर की इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन नवीद को खुद भी नहीं पता कि वो कौन है। उस तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर हम उस तक उससे पहले पहुंच जाएं और ये पता लगा लें कि वो कौन है, इस इन्फॉर्मेशन पे अजमत के साथ बार्गेन की जा सकती है, पैसों की भी और किसी और तरह की मदद की भी। लेकिन अगर अजमत ने खुद ही बार्गेनिंग कर ली और हमारे पल्ले कुछ ना आया तो? फिर ब्रो जिस हालत में है उसी में रहेंगे। अगर उसको नई इन्फॉर्मेशन ना दी ना तो तुम्हें दोबारा जेल में फेंकवा देगा। नहीं ब्रो, करते हैं। मैंने जेल नहीं जाना दोबारा। जहन्नम है जहन्नम। करते हैं जो तू कहेगा। ओ खान जी, मुबारकां, बहुत बहुत मुबारकां। कसम से बड़ी खुशी की खबर है, बहुत। हैं? क्या हो गया खान जी? वो टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यार मियां, मैं तो बिल्कुल टूट के रह गया हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सोच रहा हूं हाकिम खान से समझौता कर लूं। समझौता? किस चीज का समझौता? केड़ी गल दा समझौता भाई? हैं? समझौता तब करे ना जब हमारे पास उसे देने को कुछ हो। हमारे पास क्या उसे देने को?
तो यार तुम बताओ मैं क्या करूं? हौसला करें खान जी, हौसला करें बस। मैं कल जेल जाकर भाभी की सारी सहूलतों का बंदोबस्त करता हूँ और अगली पेशी में उन्हें अस्पताल शिफ्ट कराता हूँ, ठीक है? ठीक कह रहे हो तुम। इस तरह थोड़ा वक्त और भी मिल जाएगा। वाह। और जहां तक बात है समझौते की, समझौता करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उस वक्त करेंगे जब हाकिम खान हमारे गोडे थल्ले आएगा। बस आपने डट के खड़े रहना।